हेडिंग लिखा मैंने, लिखो नेक्स्ट हेडिंग प्लीज, कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। नेक्स्ट हेडिंग, कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। Conductivity at infinite dilution. Okay. So conductivity at infinite dilution, what is the meaning of that actually? Infinite dilution मतलब large amount of water has been added. Large amount of water has been added. So what will happen actually? So lambda in general is nothing but kappa multiplied by 1000 divided by C. What is C? C is the concentration. If it is represented in terms of molarity, become lambda m. If C is represented in terms of normality, then it become equivalent conductivity. Okay? तो अब हम लोग आते हैं फिर से. What is C? Suppose it is molarity, then it is number of moles. What is molarity? Number of moles of solute or any electrolyte dissolved in per liter of the solution, that is volume of solution ले लिया मैंने, that must be in the liter. अब तुम यहाँ पे तुम क्या बोल रहे हैं? What is actually you are saying कि large amount of water is added if volume is increased. तुम लोग बताओ, वॉल्यूम अगर इंक्रीज होगा, मोलरिटी क्या होगा? That is C. Concentration is decreasing, downward arrow. If volume is increasing, why? This is molarity, number of moles N divided by volume. If volume is increasing, this implies that molarity is decreasing. अब देखो, ध्यान से देखो, अब कोई कुछ नोट नहीं करेगा. Nobody will write anything now. मैं सब डिक्टेट करवा दूंगा. So suppose this is lambda m kappa multiplied by 1000. हमारे टेक्स्ट बुक में सिर्फ लैम्डा देता है, नो प्रॉब्लम. अब देखो, if m is decreasing, what will happen? If m is decreasing, lambda m will increase. Lambda m will increase. मैं सब डिक्टेट करवा करके लिखवा दूंगा. Nobody will write anything now. अब देखो, फिर से तुमने क्या किया? इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मीनिंग क्या हो गया? What is the meaning of infinite dilution? इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मीनिंग हो गया कि लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इज एडेड. तो एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन मैं लिख सकता था लार्ज अमाउंट ऑफ, मैं सब लिखवा दूंगा, large amount of water is added. If large amount of water is added, then what will happen? देखो, molarity is number of moles divided by volume. Now volume is tending to infinite, मतलब large amount. What will happen? Molarity will tends to 0. मतलब उसका मोलरिटी बहुत कम हो गया. मतलब कि 10⁻⁻10 जितना अमाउंट ऑफ वाटर ऐड कर, तुम क्या कर, 1 ग्लास ऑफ वाटर लिया, 1 स्पून NaCl डाल दे. फिर तूने क्या किया, NaCl का अमाउंट इज सेम 1 स्पून, बट 1 ग्लास को उठाया, बकेट में डाल दिया,
1 bucket of water 20 लीटर। फिर क्या किया, NaCl का अमाउंट इज सेम, बट उसको उठा करके तुमने ओवरहेड टैंक सिंटेक्स में डाल दिया जो तुम्हारे कॉलोनी के ऊपर है, 1000 लीटर का टैंक। नहीं समझ में आया, गया मैं उठा करके खड़गवासला डैम में डाल दिया। इनफाइनाइट लीटर्स ऑफ वाटर इज प्रेजेंट इन डैम। अगर डैम में इनफाइनाइट वाटर इज प्रेजेंट, नंबर ऑफ मोल्स रिमेन्स कांस्टेंट, but volume is tending to infinite, so molarity will tends to zero. Molarity will tends to zero. What is the meaning of that? Concentration is very very small. अगर concentration small हो गया तो lambda m में जा कप्पा multiplied by 1000 divided by molarity. Molarity is tending to zero. किसी भी क्वांटिटी के अगर तू जीरो से डिफाइन करेगा तो what will happen? Lambda m will tends to infinite. अगर lambda m is tend to infinite means कंडक्टिविटी उसका इंक्रीज कर गया बहुत ज्यादा। ओके, सो प्लीज राइट डाउन स्टेटमेंट नाउ। प्लीज राइट डाउन स्टेटमेंट नाउ। मैं बताता हूं कहां पे क्या लिखना है। लिखो लिखो, इफ सर्टेन अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज टेकन, इफ सर्टेन अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज टेकन, if certain amount of electrolyte is taken, if certain amount of electrolyte is taken, certain amount of electrolyte is taken and volume of water and volume of water is and volume of water is increasing and volume of water is increasing means it is diluted, means it is diluted means it is diluted diluted so molarity will tends to molarity will tends to zero, so molarity will tends to zero, ब्रैकेट में लिख लो, ब्रैकेट में लिख लो, बिकम वेरी स्मॉल। जीरो का मतलब हो गया वेरी स्मॉल। become very small, so conductivity of electrolyte, so conductivity of electrolyte, so conductivity of electrolyte will, so conductivity of electrolyte will, conductivity of electrolyte will increase, conductivity of electrolyte will increase, okay? तो इसलिए पहले लिखो, मैं बता रहा हूं क्या क्या लिखना है। लिखो लिखो, मोलर कंडक्टिविटी इज, मोलर कंडक्टिविटी इज, मोलर कंडक्टिविटी इज, ये वाला फॉर्मूला लिखो, ये देखो टिक कर रहा हूं मैं। लिखो लैम्डा इक्वल्स टू कप्पा मल्टीप्लाइड बाई 1000 डिवाइडेड बाई मोलारिटी यानी सी। See, this is also valid for equivalent conductivity. Huh?
सेम थिंग इज वैलिड फॉर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैंने नहीं बोला तो उसके लिए नहीं है। चाहो तो यहां पर ऐसा लिख लो, यहीं पर लैम्डा इक्विवेलेंट इक्वल्स टू, लिख लो वहीं पर कप्पा मल्टीप्लाइड बाई 1000 डिवाइडेड बाई नॉर्मेलिटी। कप्पा मल्टीप्लाइड बाई 1000 डिवाइडेड बाई नॉर्मेलिटी, वो किसके लिए? लैम्डा ई क्यू। अभी तक जो लिखा था लैम्डा मोलर था, नाउ लैम्डा इक्विवेलेंट विल बी कप्पा मल्टीप्लाइड बाई 1000 डिवाइडेड बाई नॉर्मेलिटी। उसके बाद ये लिखो, उसके बाद रेड से टिक कर रहा हूं, ये लिखो और उसके बाद पूरा का पूरा लिख करके डालो लास्ट तक, यहां तक पूरा लिखो। इफ वॉल्यूम इज इंक्रीज लैम्डा मोलर विल डिक्रीज, ऐसा पूरा लिखो, बट दैट मस्ट बी इन द स्टेटमेंट फॉर्म, दैट मस्ट बी इन स्टेटमेंट फॉर्म। That must be in statement form. अगर नोट कर लिया तो आगे जाऊं क्या? 1 minute, sir. पूरे जाऊं का? रमा, Pranya, shall I proceed forward? Nikhil, Yes, sir. चलो भाई। तो इसके आगे मैं लिखता, क्या बोल रहे? तो तुम्हारे पास आ गया वॉल्यूम इज टेंडिंग टू जीरो, वॉल्यूम इज टेंडिंग टू जीरो, सॉरी नॉट जीरो, infinite. So molarity is tending to zero. That's why lambda m or lambda eq is tending to infinite. अब इन्फिनिट का मतलब ये नहीं होगा कि एकदम इन्फिनिट, हमारे दिमाग जो भर गया है क्लास 10 तक की, इन्फिनिट का मतलब लार्ज होता है। अगर ऐसा होता तो तुम मुझे ये बताओ कि मैं वन ग्लास ऑफ या 1 स्पून NaCl ले जा करके, मेरा घर गंगा के किनारे है, बिल्कुल मेरा घर बिल्कुल गंगा के किनारे है, और तुम लोगों का घर 15 किलोमीटर दूर खड़गवासला से डैम से है। तुम लोग क्या करते? NaCl 2 रुपए का खरीदते और ले जा करके डैम में, और मैं गंगा जी में डाल करके और इनफाइनाइट कंडक्टिविटी जनरेट करके मैं पूरे सिटी को सप्लाई कर देता, और ये टेक्नोलॉजी नहीं बताता। ऐसा हो सकता है क्या? अगर हो सकता है तो क्यों? नहीं हो सकता है तो क्यों? अभी वर्ड वी आर यूजिंग की इनफाइनाइट कंडक्टिविटी कैन बी जनरेटेड if it is infinitely diluted. What does it mean? बोलो।
अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को, बोलो जल्दी से, अनम्यूट करके बोल सकते हैं, अनम्यूट करके बोल सकते हैं। भक्ति, भक्ति स्क्वायर, प्रज्ञा, संस्कृति बोल, कोई नहीं बोलना चाह रहा है। मैत्रेय, एनीवन वांट टू से समथिंग? चलो आ जाओ भाई। देखो, इनफाइनाइट का मतलब ये नहीं होता है जो तुम्हारे दिमाग में चल रहा है। वेरी लार्ज, वेरी लार्ज। मैंने तुम लोग को पहले भी एग्जांपल दिया है इनफाइनाइट का मतलब। सपोज हो सकता है तुमको याद आ जाए इनफाइनाइट जो मैंने पहले बोला था। कभी भी कोई 5 साल का बच्चा है, यही एग्जांपल दिया था। कोई 5 साल का बच्चा है, उसको मैं बोल दूं वो बहुत कर सकता है तो 5 केजी उठा सकता है मैक्स। अगर मैक्सिमम ही कैन लिफ्ट 5 केजी, डेफिनेटली 6 केजी बिकम इनफाइनाइट फॉर हिम। अब 6 केजी रख चाहे 100 केजी रख, नाउ इट बिकम इनफाइनाइट, दैट इज द रिलेटिव क्वांटिटी। लेकिन अगर मैं तुझे उठाने के लिए बोल लूं तो पता चला तू 30 केजी उठा देगा। वेट लिफ्टिंग का प्रैक्टिस किया होगा तो 60 केजी उठा देगा। तो तुम्हारे लिए तो 5 केजी इज नॉट इनफाइनाइट, बट डेफिनेटली तुम्हारे लिए 60 केजी उठाता है तो 61 केजी बिकम इनफाइनाइट फॉर यू। बेस्ट एग्जांपल और भी तुमने फिजिक्स में चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर पढ़ा होगा कुछ तो। Q इक्वल्स टू Q नॉट ब्रैकेट में 1 माइनस e रेज टू पावर टाउ अपॉन टी। कुछ याद आ रहा है? उसके लिए जब तू टाइम इनफाइनाइट लेगा ना तब जाकर के वो डिस्चार्ज होता है। लेकिन ऐसा कहाँ है रे बाबा, मैंने जैसे ही फैन को स्विच ऑन किया विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में स्विच जो है ऑन हुआ और फैन रोटेट होने लग गया। अब तुमको लगेगा ये क्या बोल रहे हैं? अरे फैन को जब उठा करके देखना घर में देखो फैन जहां पे बैठा है, सब लोग देखो ऊपर फैन पे, घर में ऊपर देखे कैप लगाया होगा, एक इन्वर्टेड और एक वैसा। वो इन्वर्टेड अच्छा लगने के लिए नहीं है, या उसको उसके अंदर उठा के देखेगा एक कंडेंसर है, सर्कुलर कंडेंसर, ऐसा कंडेंसर है, दैट इज कैपेसिटर। वो चार्ज को स्टोर कर रहा है जिसकी वजह से वो फैन हम लोग का खूब अच्छे से और चल रहा है। कैपेसिटर लगा हुआ है और ये कैपेसिटर खराब हो जाए तो फैन बहुत स्लो चलने लग जाता है, खराब बहुत चलता ही नहीं है ऐसा करके, क्योंकि इसको स्टोरिंग कैपेसिटी कम हो गई चार्ज के। लेकिन मैं जैसे ही स्विच ऑफ करता हूं, अब तुम सोचो मैथमेटिकली फिजिक्स में Q इक्वल्स टू Q नॉट ब्रैकेट में 1 माइनस टाउ अपॉन टी, व्हेन T इज टेंडिंग टू इनफाइनाइट तब जाके डिस्चार्ज होना चाहिए था। लेकिन तूने जैसे ही स्विच ऑफ किया, 1 सेकंड भी नहीं लगता कि स्विच ऑफ हो गया। तो भाई जो तेरा फैन का इनफाइनाइट टाइम है वो 1 सेकंड है, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड है। मतलब इनफाइनाइट का मतलब ये नहीं होता है, दैट विल डिपेंड प्रोसेस टू प्रोसेस। हो सकता है फ्रैक्शन ऑफ सेकंड ही इनफाइनाइट हो, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड ही इनफाइनाइट हो तुम्हारे लिए। हो सकता है मैं स्पेस की बात करूं तो लाइट ईयर हो सकता है मेरे पास, लाइट ईयर, 2 लाइट ईयर, 10 लाइट ईयर जाकर के इनफाइनाइट वैल्यू हो। दैट इज द डिपेंडिंग, दैट इज द रिलेटिव क्वांटिटी। तुम्हारे ऊपर है किसके लिए रेस्पेक्ट में डिफाइन कर रहे हो। सेम थिंग इज हियर। जो तूने 1 मोल ऑफ NaCl लिया या 1 स्पून ऑफ NaCl लिया, व्हाट डज इट मीन? जब तुमने इनफाइनाइट डाइल्यूट कर दिया ना, तो उस टाइम पर जो NaCl था, all NaCl is 100% dissociated. Why? Cations and anions, that is the ions, are responsible for conduction of electricity.
तो व्हेन यू आर इनफाइनाइटली डाइल्यूट, पहला एक ग्लास वाटर लिया था तो पता चला 95% वाटर तो NaCl डिसोसिएट हो गया था, बट 2-4% अभी भी बाकी था। और जब तूने इनफाइनाइट डाइल्यूट कर दिया, नाउ ऑल कैटायंस एंड अनायंस आर इन आयन फॉर्म। 100% कैटायन एनायन मिल गया, 100% चार्ज इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है। और तूने अगर वाटर और ज्यादा डिसॉल्व कर दिया, उसके मूवमेंट में कोई रेसिस्टेंस नहीं आएगा। क्यों? कोलिजन वगैरह आयंस नहीं करेंगे, क्योंकि दे आर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, रेसिस्टेंस कम हो गया। दैट्स व्हाई कंडक्टिविटी इंक्रीज। अब कंडक्टिविटी इंक्रीज का मतलब इनफिनिट कंडक्टिविटी नहीं हो गया। तो मेरे कहने का मतलब 1 स्पून यानी 10 ग्राम, सपोज 10 ग्राम से जो मैक्सिमम कंडक्टिविटी टू अचीव कर सकता था, द कंडक्टिविटी विच कैन बी maximum achieved from 10 gram of NaCl, that can be achieved if and only if when it is large amount of water, मैं बोल दूं added, when it is dissolved in large amount of water। कहने का मतलब ये है। तो मतलब जो तुझे 10 ग्राम का मैक्सिमम कंडक्टिविटी मिल सकता था, वो कब मिल सकता है? हो सकता है वो 1 ग्लास ऑफ NaCl में नहीं, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर में मिलेगा, एंड दैट इज कॉल्ड एज लैम्डा मैक्स या मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। अब समझ में आया क्या? पहले ये बोलो सब लोग, और कोई ये ना बोल दे कि सब किससे समझाती है। हाँ, समझ में आ रहा है ना? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो अब फिर से एक लाइन लिख लो तुम लोग, फिर से लाइन लिख लो। उस लाइन को छोड़ दो, जहां तक अब तुम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, उसके बाद लिखो लाइन। प्लीज राइट डाउन, प्लीज लिखो। व्हेन लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इज एडेड, when large amount of water is added, when large amount of water is added, then all ions are 100% dissociated. All ions are 100% dissociated. All ions are 100% dissociated. All ions are 100% dissociated, due to which conductivity due to ions, due to which conductivity due to ions will be increased, क्योंकि इसके पहले पूरा डिसोसिएट नहीं हुए थे। ओके, and due to dilution, resistance of the solution also decreases. ये है इसका मीनिंग। तुम लोग अपने लैंग्वेज में भी लिखना चाहते थे कुछ, वो भी लिख लो। चलो आ जाओ। नाउ वन ऑफ द बेस्ट प्रॉब्लम फॉर IIT NEET, इवन फॉर द बोर्ड वन ऑल्सो। तो प्रॉब्लम लिखो। देखो, which of the following statement may be right? Which of the following statement may be right? Which of the following statement may be right? When any electrolyte is infinitely diluted, when any electrolyte is infinitely diluted, then option number 1, kappa is increasing,
lambda m is increasing, दोनों के लिए. kappa is decreasing. What is kappa? Specific conductivity है ना, for 1 centimeter cube of the solution. बोला है kappa increasing, lambda m decreasing. Fourth one, lambda m increasing, kappa decreasing. Fifth one, चलो भाई नोटा लगा दिया. None of them. किसी को लगता है तो all of them भी कर सकता है. बोलो जल्दी से बोलो, फास्ट. Which one is correct and why is correct? Which one is correct and why it is correct? साइली बोल. रन्या. रन्या बोलो. तन्वी बोल, मेरी पड़ोसी. कोई तो बोलो, कुछ तो बोलो. Which one may be correct, which one may be wrong? इतना सन्नाटा क्यों है भाई? विरजा बोल. अर्णव, you have already studied one. Nikhil already studied one. फर्स्ट ऑप्शन बोल रहे हैं गौतमी. बाबा 3 गौतमी है. ऑप्शन ए, कप्पा इंक्रीजेस, लैम्डा इंक्रीजेस. देखो इनफाइनाइट डाइल्यूशन करने से बाय डेफिनेशन लैम्डा एम इज इंक्रीजिंग. Either lambda m, either lambda eq, whatever you are taking, but it is increasing because after dilution molarity normality both are decreasing. तो देखते हैं भाई, सब लोग नॉर्मली ये वाला माइंड में जाएगा, बट दिस इज रॉन्ग वन. दिस इज रॉन्ग वन. दिस इज रॉन्ग वन. सब लोग अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं और जो भी बोलना है बोल सकते हैं. ठीक है ना? lambda m will increase. हाँ बोलो. K will remain constant and lambda m will increase. बोलो भाई, ये बोल रहे हैं नया ऑप्शन, K remains constant and lambda molar increase. ऐसा है क्या? चलो देखते हैं. ये भी नहीं है. चलो इधर देखो सब लोग. I don't think anyone is having problem कि lambda m is increasing. No problem. इसमें पूरा एक्सप्लेन करके दे दिया. But problem is kappa will, fourth one बोल रहे हैं, kappa will decrease. Fourth one, sir, conductance increases so kappa also will increase. Side no. गौतमी फोर्थ बोल रही है. पहले फोर्थ बोल रही थी, फोर्थ फर्स्ट बोल रही. फर्स्ट फोर्थ. आ जाओ भाई. ऑप्शन 4 इज करेक्ट. प्रॉब्लम इज वाई. इधर देख. व्हाट इज कप्पा? व्हाट इज कप्पा? दिस इज कंडक्टिविटी ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सॉल्यूशन. क्या कर, पहले तुमने 1 ग्लास ऑफ NaCl लिया था, इसमें से 1 सेंटीमीटर निकाल. दूसरी बार मैं ले जाके गंगा में डिसॉल्व कर दिया. मैं ले जाकर के खड़गवासला डैम में डाल दिया. खड़गवासला डैम से भी 1 सेंटीमीटर के लिए ही निकाल. अब तुम बताओ नंबर ऑफ आयंस पर सेंटीमीटर, यानी 1 सेंटीमीटर में कहां पे ज्यादा मिलेगा? इन ग्लास और इन गंगा या खड़गवासला डैम.
बोलो, नंबर ऑफ आयंस विल बी मोर इन 1 सेंटीमीटर में। भाई यहाँ पे तुमको गूगल सर्च करना पड़ जाएगा खड़गवासला डैम में। अगर ग्लास में नंबर ऑफ आयंस आर मोर, अरे आयंस आर रेस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन, ions are responsible for the conduction. So if you are getting more number of ions in 1 centimeter of 1 glass of water, so conductivity will be more. अब पता चला खड़गवासला डैम में 1 सेंटीमीटर में निकाला, पता चला हो सकता है एक भी Na+Cl ना मिले, तो कंडक्टिविटी नहीं करेगा। एंड लेट अस एज्यूम कि जो डैम है वो प्योर वाटर है, वाटर कंडक्ट नहीं कर रहा है। ओके, सो पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ per centimeter, number of ions are decreasing, that's why kappa will decrease. मुझे इसको लिखवाना है क्या? Shall I dictate it और लिख लेंगे? बोलो, गौतमी बोल रही है यस। यस किसके लिए? लिख लेंगे या डिक्टेट करूं? तन्वी बोले नहीं नहीं डिक्टेट करिए। तनिया बोली हम लिख लेंगे। लिख लेंगे सर, डिक्टेट करिए। अरे डिक्टेट करिए, चलो भाई लिखो लिखो जल्दी से लिखो, डिक्टेट करना है, लिखो ईश्वरी लिख, लिखो। व्हेन, इस प्रॉब्लम के नीचे इसका एक्सप्लेनेशन, आंसर इज 4th। लिखो, व्हेन लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इज एडेड, when large amount of water is added, when large amount of water is added, then number of ions per unit volume will, so number of ions per unit volume will decrease। पर यूनिट वॉल्यूम को पर सेंटीमीटर कला दिया ज्यादा अच्छा है, पर सेंटीमीटर क्यूब विल डिक्रीज। So kappa will decrease, so kappa will decrease, so kappa will decrease and lambda m will increase। ठीक, now let us move to next important topic of this one। वो क्या है? कोहलरास लॉ। कोहलरास लॉ, इस पर अभी तुम्हारे बोर्ड एग्जाम तुमको डेफिनेटली मिलेगा, प्री बोर्ड, बोर्ड, फाइनल या चाहे यहाँ पे मिलेगा जरूर इस पर प्रॉब्लम। चलो फिर से बाद में देखना सब लोग। तो जो तुमने हेडिंग लिखा था ना, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, पीछे जाओ सभी लोग, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, उसके लिए ब्रैकेट में ऐसा लिख लो लैम्डा एम, या सिर्फ लैम्डा लिख करके कर सकते थे, सिर्फ लैम्डा लिख करके करूंगा तब पर भी सही है, लैम्डा नॉट और लैम्डा इनफाइनाइट। तो तुझे बुक में लैम्डा नॉट करके ऊपर लिखेगा। चलो अब कोई कुछ नोट ना करेगा, nobody will write anything now, nobody will write anything now। suppose you are taking NaCl, this will be broken into NaCl,
Suppose you are taking MgCl2 will be broken into, sorry, this is Na plus and Cl minus, Mg2 plus and 2Cl minus. अब देखो lambda naught molar है तो molar of NaCl at infinite dilution will be lambda naught of Na plus lambda naught of Cl minus. Okay. What about infinite dilution per molar conductivity of MgCl2 lambda n. So this is Mg2 plus and 2 times lambda naught of Cl minus. तो कोई कुछ नोट नहीं करेगा, मैंने पहले ही बोला है. मेरे कहने का मतलब था कि मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ NaCl is sum of conductivity at infinite dilution of Na plus and molar conductivity at infinite dilution of Cl minus. इन जनरल डेफिनेशन अगर बनाना है तो मैं क्या लिख सकता हूं कि मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइट विल बी इक्वल टू किसके बराबर, sum of conductivity of its all ions present into the system at a particular temperature. Why particular temperature बोला मैंने, क्योंकि बेटा अगर तूने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया ना तो आयंस का मूवमेंट चेंज हो गया है. आयंस का मूवमेंट यानी वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, तो डेफिनेटली कंडक्शन विल बी द फास्टर वन. चलो आ जाओ, प्लीज राइट डाउन द डेफिनेशन फर्स्ट एंड इंपॉर्टेंट वन. राइट डाउन हेडिंग डेफिनेशन. देखो कंडक्टिविटी ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइट, conductivity of any electrolyte at infinite dilution is equals to sum of conductivity of all ions present at sum of conductivity of all ions present at infinite dilution at a particular temperature. और उसके बाद एग्जाम्पल लिखो. एग्जाम्पल कौन सा लिखना है, लैम्डा वाला एग्जाम्पल. ये समझाने के लिए था सिर्फ. मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ AlCl3 will be lambda मोलर, वो भी किसका, Al3 प्लस का 3 टाइम्स. ये लैम्डा तुम ऐसा बना सकता था. ओके. Similarly, lambda infinite molar for
Al2 SO4 का थ्राइस। तो अब तुमको ब्रेक करने आना चाहिए। अपोजिट चार्ज रेशियो में ब्रेक होते थे। एल्यूमिनियम 2, अब इसी के आगे लेमडा लगा देना था। तो दिस इज 2 times lambda naught molar of this one, 3 times lambda naught molar of SO4 2 minus। अब मैं तुमको बता रहा हूं कि जो नीट में प्रॉब्लम आया, सिमिलर प्रॉब्लम वाज इन आईआईटी। आईआईटी से उठा करके उन्होंने नीट में रखा और दो बार नीट में दिया है, और दोनों बार आंसर अलग अलग करके तुम्हारे बुकलेट में सॉल्व करके दिया है। मैं बताता हूँ क्या होना चाहिए। पुढे जाऊं का रमा, इथेपर्यंत काय डाउट आहे का? बोलो। विश्रांति बोल रही है यस। अच्छा नहीं, चलो भाई तुमको मैं बताता। इधर देखो, कोई कुछ नोट नहीं करेगा। अगर तुमको इसका लिखना है तो क्या होगा? अगर याद हो, लॉ ऑफ इक्विवेलेंट्स, इक्वल इक्विवेलेंट्स रिएक्ट करते थे, इक्वल इक्विवेलेंट प्रोडक्ट फॉर्म होते थे। इसलिए यहां पर भी लॉ ऑफ इक्विवेलेंट्स सिर्फ और सिर्फ सम ऑफ कैटायंस एंड सम ऑफ अनायंस, नो नीड टू राइट 3Cl माइनस। बट तुमको एक और भी याद है, बाद में लिखो, बाद में लिखो, बाद में लिखो। आते ही पहले डिराइव करके दिया, इसीलिए। lambda molar divided by valency factor. What is the valency factor of? What is the valency factor of Al3 plus? जितना चार्ज दिखाई दे रहा है। ओके, व्हाट इज द, इसका कितना हो गया? lambda m molar of Cl minus divided by valency factor 1। अब मेरे कहने का मतलब ये था कि इसी को तुम्हें lambda मोलर के टर्म्स में लिखना होता तो क्या होता? lambda इक्विवेलेंट को lambda मोलर के टर्म्स में। सो दिस इज द करेक्ट आंसर, जो सेकंड वाला। अगर इक्विवेलेंट के टर्म्स में दिया है तो आगे 2, 10, 20, 100 से इससे कुछ लेना देना नहीं है। सिर्फ और सिर्फ वैलेंसी फैक्टर को देखना है, ओनली वैलेंसी फैक्टर। व्हाट इज द वैलेंसी फैक्टर ऑफ कैटायंस एंड आयंस? व्हाटएवर इज द चार्ज अपीयरिंग ड्यूरिंग द प्रोसेस, या जो भी कैटायन आयन बना रहे हैं। कैटायन हुआ तो चार्ज, पॉजिटिव चार्ज इज द वैलेंसी फैक्टर। अनायन हुआ तो, अनायन हुआ तो नेगेटिव चार्ज अपीयरिंग ऑन द आयन। तो मेरे पास जो एग्जाम आया था तुम्हारे नीट में एंड दैट इज द आईआईटी में, वो क्या था? वो था CaCl2 के लिए बस।
Shall I proceed now? Shall I proceed now? 2 मिनट। नोट करो जल्दी से। So this is purely competition. इसके पहले वाले स्लाइड purely बोर्ड वर्क। डन। हो गया? यस सर। चलो इसका यूज देखो, इसका यूज देखो कहां पे है। तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में आता है हर साल तो नहीं बोल सकते बट फ्रीक्वेंटली आता रहता है। तुमसे क्या बोलेगा? एंड मैं तुमको बताता हूँ, कंपटीशन में एक लाइन में मैं करके दिखाता हूँ, बोर्ड में तुमको पूरा पेज लिख करके भर करके देना पड़ेगा। तुमसे बोल रहा है कि इफ लैम्डा मोलर इनफाइनाइट, lambda molar infinite for CH3COONA। किसको देखना है? लास्ट स्लाइड जल्दी कर ईश्वरी, ईश्वरी फास्ट। अरे निखिल कुमार समझ में आ रहा है? यस सर। सपोज दिस इज lambda 1, ठीक है ना? सपोज यू आर टेकिंग NaCl, इसके लिए lambda 2 है। मैं स्टेटमेंट लिखवा देता हूं बाद में। सपोज lambda 3 है, lambda मोलर ऐसा, तो लिखो इफ लगा करके ऐसा ही लिख लो, इफ मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर, if molar conductivity at infinite dilution for, if molar conductivity at infinite dilution for CH3COONA, comma NaCl, comma HCl are lambda 1, lambda 2 and lambda 3. If molar conductivity at infinite dilution of CH3COONA, NaCl and HCl are lambda 1, lambda 2 and lambda 3, then find out molar conductivity. Then find out molar conductivity and infinite. Lambda m not लिखा करो, पूरा स्टेटमेंट लिखने की कि molar conductivity at infinite dilution. So lambda m naught of CH3COOH will be, अब देखो सभी लोग इसको सॉल्व कैसे करेंगे? इक्वेशन मैंने लिखा अकॉर्डिंग टू Paul's law, what you can write lambda m, और सबके लिए तुमको लिख करके देना पड़ेगा। इसलिए
ये लेंदी है बोर्ड में, लेकिन आएगा भी तो 2-3 मार्क्स का भी आएगा। सिमिलरली ये सब पूरा स्टेटमेंट लिखना है, तुम लोग लिखो स्टेटमेंट, लिखो स्टेटमेंट। अकॉर्डिंग टू कोलरास लॉ, molar conductivity at infinite dilution for CH3, COONA, NaCl and HCl can be written as अच्छा, ये प्रॉब्लम तुम्हारे पास स्टेट बोर्ड में लास्ट ईयर था, इस बार के टेक्स्ट बुक से ही हटा दिया। स्टेट बोर्ड सीबीएसई में अभी भी है, ठीक। तो मैंने लिख लिया फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। अब तुम लोग देखो, इधर देखो सब लोग, बाद में लिखना, नोबडी विल राइट एनीथिंग नाउ। इधर देख, मैं ऐसा क्या करूं फर्स्ट सेकंड थर्ड में बिकम फोर्थ वन? थर्ड प्लस फर्स्ट इज माइनस सेकंड। बोलो भाई, क्या करना चाहिए मुझे? फर्स्ट सेकंड थर्ड में व्हाट शुड वी मैनिपुलेट सच दैट इट बिकम फोर्थ वन? फर्स्ट इक्वेशन प्लस थर्ड इक्वेशन माइनस सेकंड इक्वेशन। बोलो भाई, फर्स्ट प्लस 3 माइनस 2, 2 प्लस 3 माइनस 1 बोल रहे हैं तनया। अलाप अथर्व बोल रहे हैं 1 प्लस 3 माइनस 2, 1 प्लस 3 माइनस 2। भक्ति, चलो भाई, प्रज्ञा भी बोल रहे हैं 1 प्लस 3 माइनस 2। तो सभी लोग बोल रहे हैं वही जो निखिल बोला है, ठीक। And this is board problem. I'm not taking any competition level. By the way, same problem came in IIT NEET as well as बोर्ड में। तो कई बार आया हुआ है, एक बार नहीं कितनी बार आया है बोर्ड में, सीबीएसई एज वेल एज स्टेट बोर्ड। तो ये बोल रहे, तुम लोगों ने बोला कि 1 प्लस 3 माइनस 2 कर दीजिए। अब देखो, मैं बिल्कुल करके देता हूं, लेकिन तुमको क्या करना है, तुम पहले से ही डिसाइड कर लो। कैसे? तुम रिएक्शन तो लिखो पहले। ये बोर्ड अप्रोच है, सॉरी कंपटीशन अप्रोच है, लिख लिख करके करना, उसका रहेगा वो पूरा। अभी मैं बताता हूं। अदरवाइज बोर्ड के लिए तुमको पूरा लिख करके कैटायंस आयंस कट करना पड़ेगा। और एट द सेम टाइम मैं यहां पर वो दिखा दे रहा हूं तुमको। ये देख, टोटल नंबर ऑफ कैटायंस एंड अनायंस लेफ्ट साइड एंड राइट साइड मस्ट बी इक्वल। बस इसी के आगे लेमडा लगा देना तुम। तो लेफ्ट साइड एंड राइट साइड का हो गया Na प्लस H प्लस Cl माइनस, ऐसा है। तो तुमने किया क्या है कुल मिलाकर के? मैंने तुमको ये दिखाया कि लेफ्ट साइड का आयंस मस्ट बी इक्वल टू राइट साइड का आयंस। अब मैं क्या करूं? CH3COONA is first, HCl is third, और ये क्या है? फोर्थ प्लस सेकंड, दोनों मस्ट भी इक्वल होना चाहिए। तो क्या कर, फोर्थ इक्वल टू 1 प्लस 3 माइनस सेकंड हो गया। इट मीन्स दैट दिस मस्ट बी इक्वल टू lambda 1 plus lambda 3 minus lambda 2।
ये था कॉम्पिटिशन अप्रोच, बस इक्वेशन लिखा और फटाक से कर डाला। लेकिन यही प्रॉब्लम बोर्ड में आया तो तुमको लिखना पड़ेगा, और यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा कि वी विल गेट ऐसा। फोर्थ वन, और ये जो अब बॉक्स में करके कर रहा हूं ये मेरा कॉम्पिटिशन। इक्वेशन लिखा, इक्वेशन लिख करके फटाफट खत्म किया 2 लाइन में। तो ये वैल्यूज देगा लेमडा 1 लेमडा 2 का 100 200 300 400। तो मेरे पास जो जेई मेंस पे दिया था उन्होंने एक्स्ट्रा डाटा भी दे रखा था 2-3, और जरूरत ही नहीं है मुझको लेने की, वो डराने के लिए था, वो तुमको डराने के लिए था। सब लोगों ने नोट कर लिया क्या? अब अगर नोट कर लिया है तो शैल आई प्रोसीड फॉरवर्ड प्लीज? शैल आई प्रोसीड फॉरवर्ड? लिहून घेतला का रे? यस, अगर यस तो क्यों ना थोड़ा सा मैं और अच्छा से कर लूं। एक और प्रॉब्लम, सपोज BaCl2 के लिए लेमडा मोलर इनफाइनाइट इज लेमडा 1। चलो NaNO3 के लिए लेमडा 2, BaNO3 का ट्वाइस लेमडा 3। कौन बताएगा कि NaCl का कितना होगा? एक लाइन में करना हो तो जैसा मैंने किया था, यही प्रॉब्लम कंपटीशन में आ जाएगा तो पूरा लिख लिख करके ब्रेक करके देना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू कोलरास लॉ। दिस lambda 1 plus lambda 2 minus lambda 3. बोलो भाई। निखिल बोल रहे हैं लेमडा 1 प्लस लेमडा 2 माइनस लेमडा 3। अर्णव, रन्या, जल्दी बोल, अथर्व, भक्ति, भक्ति स्क्वायर। फास्ट रे बाबा, फास्ट, वी आर टेकिंग टू मच टाइम। 1 + 2 - 3 अथर्व, यही निखिल ने भी बोला था 1 + 2 - 3। भक्ति, प्रज्ञा, अर्णव, दर्शना, वैष्णवी, श्रुति, बोल। चलो भाई, तो अभी तक जिन लोगों ने बोला है उन लोगों का रॉन्ग है, तो देखते हैं कैसे। Why this is wrong? BaCl2, NaNO3, BaNO3 का ट्वाइस एंड देन NaCl। साहिल बोले 1 + 2 - 3 / 2, ये हो सकता है क्योंकि तुमने रिएक्शन को बैलेंस ही नहीं किया। मैंने बोला था टोटल नंबर ऑफ आयंस लेफ्ट साइड एंड राइट साइड मस्ट बी इक्वल, ठीक है ना? तो ये क्या हो गया, लेमडा 1 2 टाइम्स लेमडा 2 माइनस लेमडा 3 इक्वल्स टू 2 टाइम्स लेमडा 4, इसलिए लेमडा 4 इक्वल्स टू लेमडा 1 लेमडा 2 ऐसा। रन्या देख फिर से कर।
So this problem was in IIT. So this is the future problem of the NEET and board exam. हाँ, बोर्ड एग्जाम में आएगा तो तुझको करना क्या है, तुझको पहले से ही पता है, तुम ऐसा लिख लेना अपने रफ कॉपी में कहीं पर, और तुमको पता है रिजल्ट क्या आएगा, तुम सिर्फ लिखो कि BaCl2 को ब्रेक किया तो ये आया अकॉर्डिंग टू कैलरस लॉ, NO3 को ब्रेक किया तो ये आया 1 + 2 - 3 मल्टीप्लाइड बाय ऐसा करके वी आर गेटिंग दिस वन। आंसर मुझे पहले से पता है, बस उसमें फीड करना है वर्ड फॉर्मेट में। नेक्स्ट वन, डी बाय ऑन सागर हकल रूल, हकल इक्वेशन बोल रहा हूं। तो ये मेरे टेक्स्ट बुक में डायरेक्टली दिया है, नाम नहीं दिया है। दोनों स्टेट बोर्ड CBSE बोर्ड दोनों जगह दिया है, एवरीवेयर इज गिवन। तो मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन C इज एक मिनट, तो ऐसा आ गया। व्हाट इज B? B इज एनी कांस्टेंट एंड व्हाट इज C इज कंसंट्रेशन। वो भी किसके लिए है? फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो अगर तुमने कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन, देखो क्या हुआ, इन्फिनिटली डाइल्यूट कर दो C बिकम 0, और यही लैम्डा C बिकम लैम्डा इन्फिनाइट। बिल्कुल सही है। अरे दिस इज नथिंग बट, मैंने बोला था ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं। How graph is plotted? This is on y-axis. This is the maximum value, always constant. Yes. Y equals to mx minus c, minus mx plus c line. When x equals to 0, y is c. When y is 0, x is c. ये आया। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए म्यूट कर लो भाई जो भी है, अदरवाइज आई विल म्यूट टू ऑल ऑफ यू। So this is nothing but straight line with negative slope. This is for strong electrolyte. And weak electrolyte लेगा, if you are taking weak electrolyte, तो जब वो तू 1 लीटर में सपोज HCl लिया था एंड 1 लीटर में ही NH4OH लिया था, अरे ये तो बहुत कम डिसोसिएट हुआ था। तो उतना ही आयंस के लिए तुमको बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ वाटर ऐड करना पड़ेगा। किसके लिए? वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो हमेशा उसमें नंबर ऑफ आयंस, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से नंबर ऑफ आयंस एट अ पर्टिकुलर वॉल्यूम इन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन वीक इलेक्ट्रोलाइट। क्यों? पता चला एक लीटर लिया, NH4OH 5% dissociate, ऊपर चला 90% dissociated, number of ions will be more, so conductivity will be also more. तो इनफाइनाइट आयन वीक इलेक्ट्रोलाइट में तुझे निकालने के लिए ज्यादा वाटर ऐड करना पड़ेगा एज कंपेयर टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, इसलिए उसका ग्राफ मैं और भी ऊपर लेकर के गया हूं। नोट डाउन प्लीज। अगर स्टेटमेंट लिखना है तो लिख सकते हैं, या तो फिर हम लोग कल भी लिख सकते हैं। ओके, काय प्रॉब्लम आहे का?
यहां तक किसी को